219 पेज पे 78 पॉइंट, चैप्टर कौन सा 17 चल रहा है ना, 14 सॉरी, गुणस के ऊपर 14th चैप्टर, प्योर फॉर रजस, लिविंग विद इन द बाउंड्स ऑफ स्वधर्म। वापस स्वधर्म आ गया। चलो कुछ मेरे लिए मैसेज होगा आज का दिन में इसके लिए। एकदम। चलो स्टार्ट करें। हाँ, पैरा नंबर 30। Thereafter we should turn to Rajas. Rajas too is a terrible foe. It is the other side of Tamas. In fact, Rajas and Tamas should be considered interchangeable terms. After resting for long, the body feels like doing something, and after too much activity, it seeks rest. Thus, Rajas follows Tamas and vice versa. Wherever one of them is there, the other is invariably present. Like bread in the oven with the flames below and the embers above, man is caught between Rajas and Tamas. They toss him ये towards एग्जाम्पल each समझा? other. हाँ, एक मिनट में ये फिनिश करती हूँ. They toss him towards each other and together ruin him. His life is spent in getting kicked around by Rajas and Tamas like a football. हाँ मैम, अभी बोलो. मैंने कहा वो एग्जाम्पल समझा, ब्रेड इन दी अवन। नहीं. विद द फ्लेम्स बिलो, उतना तो समझा। हाँ. एंड दी एम्बर्स अबव, ऊपर वो जो फ्लेम की वजह से वो जो चिलकता है, जलता है, हाँ, जलना। जलता है, जलना. तो मैन इज कॉट बिटवीन द टू। और फिर दूसरा एग्जाम्पल तो क्लियर है, लाइक अ फुटबॉल किक्ड अराउंड। रजस और सही. तमस के बीच में झूलता रहता है। झूलता रहता है. तमस रजस में फेंकता है, रजस तमस में फेंकता है। The main characteristic of Rajas is the itch and ambitions to engage in all sorts of activity. There is an intense desire to do daring deeds. Rajas gives rise to limitless hunger for an attachment to actions. Then it becomes impossible to withstand the onslaught of desires and passions. Man wants to do something or the other. He feels an urge to move mountains, to fill up lakes and create new ones in the deserts. He wants to dig a Suez Canal here and a Panama Canal there. He is completely seized with such wild ideas. There is no thought except that of doing this or that thing. A child takes a piece of cloth, cuts it up, and tries to make something out of its pieces. Activities impelled by Rajas are of the same kind. Man is then never satisfied with what exists and wants to interfere with everything. He sees a bird, wants to fly and makes aeroplanes. He sees a fish, wants to live like in the water and makes submarines. Thus, in spite of
being a human being, he feels a sense of achievement in emulating the birds and the fish. Although residing in a human body, he yearns to enter into the bodies of other beings to have different experience. Some even want to go to Mars. The mind is thus never at rest. It wanders all the time. A multitude of desires possesses man like an evil spirit. He wants change, activity, excitement. He is not satisfied letting things alone. He feels that if the things remain in their place in spite of him, it is an effort to him. A wrestler cannot contain the energy within him and bangs anything which comes in his way. Without rhyme or reason, Rajas is always gushing forth, driving man to do this or that. It makes man dig the earth and bring out stones which he then calls diamonds. It makes him dive deep into the sea and bring out rubbish which he then calls pearls. He then prescribes holes through them and through his own nose and ears as well, so that those could be worn there. Why does a man do all this? All this is under the influence of Rajas. माय गॉड, अच्छी अच्छी चीजों को कैसे बुलाया है। सारे इन्वेंशन डिस्कवरी सबको रजस मना के। मेरा मेरे मैंने बोला नहीं, मेरे लिए कुछ मैसेज है। मेरा ना इतने दिनों से मस्त जा रहा है, मस्त मतलब एकदम एनर्जेटिक। ये काम करो, वो काम करो, प्रॉपर प्लानिंग, ये वो। बट आज मैं इतनी थक गई हूँ ना, इतनी थक गई हूँ कि पूछो ही मत, कुछ काम करने को। तो तो ये रजस पूरा से तमस में आ गई कि फुटबॉल खो गया। की तरह है मेरा। मुझे अभी मैं बोला ना, मेरे लिए कुछ मैसेज है। एक्चुअली ना 2:30 को मैं सोई थी। मैं बोली 3 बजे क्लास है, बहुत दिन हो गया क्लास नहीं किया। आप आ गए, अभी क्लास करते हैं। फिर मैं उठी 3 बजे, ऐसे ही जस्ट शवासन कर रही थी। तो फिर मैं सोची अभी नहीं हो रही है मीटिंग तो जाने दे, दूसरा जो काम है वो करते हैं। आपका मैसेज जो है तो मैंने बोला चल ट्राई करती हूँ, एक बार हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा करते हैं। मतलब ऐसा है ना। मेरे लिए ही है ये। लेकिन कैसा कैसा तमाचा मारा है। हाँ, वो पल्स का अच्छा बताया, वो सबमरीन का भी मस्त बताया है। मैम मुझे एक बात बताओ, 2 महीने से ना मैं ऐसे खाली बैठी थी। हाँ, कोई भी क्लास नहीं था, कोई भी नहीं था। मॉर्निंग का भी नहीं, सिर्फ एक ही इवनिंग का एक क्लास था बस, बाकी कुछ नहीं था। तो वो टाइम पे ऐसा लगता था कि अरे क्लास होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए ऐसा। Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. ओके, और अभी क्लास हो गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। तो ये अपने आप को समझना है कि ऐसे ही रजस हाँ, तमस में रहना है कि सत्व में जाना है। मैं अपने आप से वही समझ, अरे 2 दिन से इतना चालू है मंथन, आप पूछो ही मत, हर एक चीज के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर। मतलब ऐसे
पहले जैसा नहीं हो रहा है मुझे, बट मैं अपने आप से खुद से ही ऐसे बात कर रही हूँ कि मन कैसा है, ऐसा कि उसको खाली बैठना भी पसंद नहीं है, अभी भर गया है तो भी पसंद नहीं है, तो यानी कि चाहिए क्या? सत्व चाहिए, रजस भी नहीं चाहिए, तमस भी नहीं चाहिए, ये समझ में आ गया। हाँ। तीसरा चाहिए सत्व, तो आगे आएगा। अभी आगे ये भी बताएंगे हाउ टू क्योर योर सेल्फ ऑफ दिस रजस। तमस को कैसे क्योर करने का बता दिया, तो उसके उपाय करो ये जब तमस में हो। रजस में हो तो रजस के उपाय करो, अभी वो बताएंगे। सुमति का क्या चल रहा है, रजस चल रहा है तमस चल रहा है? क्या पता, मेरी तो कितने दिनों से बात ही नहीं हो रही है उससे, कारण क्योंकि मैं तो सुपर डुपर बिजी हूँ मैम, पूछो ही मत। उसने ज्वाइन किया है। अच्छा, ऐसा है। हाय। अभी मैं बोलो। फिलहाल तमस में हूँ, वो लोग सब चले गए। रजस 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 बहुत हेक्टिक था। नाउ आई एम ऑल अलोन। तो रजस हो गया, अभी तमस में है। तो रजस तमस के बीच में फुटबॉल चलता रहेगा। सुमति, तू कब आई? तू पढ़ रही थी तभी आई। अरे मैंने मोबाइल से लॉगिन किया है तो मुझे पता ही नहीं। मैं भी मोबाइल से ही लॉगिन, मेरा लैपटॉप खराब हो गया है। मैं पता नहीं, वो अचानक अचानक इंटरनेट निकल जाता है उसमें से। तो मैं बोला ठीक है, मोबाइल से ही ज्वाइन कर लेती हूँ। मैं भी वही सोची, लैपटॉप से करूंगी तो टाइम लगेगा, उससे अच्छा फटाफट मोबाइल से हो जाएगा। चलो, चले आगे। यस। कहाँ पढ़ रही है तू? मैं मिस किया मेरे को। तू कहाँ क्या पढ़ रही थी वो भी ध्यान, मतलब पेज पता नहीं चला। 200 कौन सा पेज चल रहा है? 220 220। पैराग्राफ। उसमें ना लास्ट 15, लास्ट में नीचे एकदम देख, 15 नंबर का पैराग्राफ। हाँ हाँ, मिला। चलो। Another effect of the rajas, another effect of the rajas is the loss of stability and patience. Rajas wants immediate result. A slight obstruction therefore makes man give up the activity. Under the influence of rajas, man start new projects endlessly, leaving earlier projects incomplete. He is thus always vacillating, विसिलेटिंग यानी आगे, वो पेंडुलम की तरह इधर vacillating with different activities. As a result, nothing concrete, कॉन्क्रीट। concrete the it's achieved. Rajasam chaladruvam. A rajasic activity is invariably marked with fickleness, wavering, and lack of firmness. A man with rajas is like a child who sows a seed and impatiently digs after a few minutes to find out whether it has sprouted. He is impatient to have everything quickly and lack restraint. He does not know how to plant his feet firmly on the ground. Having done some work at a place and earned some recognition, he wants to go to other places seeking recognition there. Rather than doing concrete work steadily at one place, he prefers hopping from place to place in the pursuit of name and fame. His mind is fixed on that only. This lands him in a terrible condition. अब बोलो क्या बोलते हो? कुछ नहीं, सब कुछ मेरे लिए ही है ऐसा लग रहा है। क्या क्या है? कहाँ कहाँ अप्लाई करेगी?
वेरी सबसे ट्रू, पहले सब तो कुछ सही है। एक्टिविटी राजसिक कौन सी है, वो जो पहली लाइन में पेज 221 पे बोला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली एक्टिविटी इज नॉट राजसिक। ये काम fickleness। शुरू करना और खत्म नहीं करना राजसिक है, समझी? काम करना राजसिक नहीं है। अच्छा। सो राजसिक एक्टिविटी इज इनवेरिएबली मार्क्ड विथ फिकलनेस। फिकलनेस है ना, सतही, छिछला, हम्म not enough thinking and preparation, etc., and firmness, not fixed. You हम्म know, समझा गया। वो फ्लेम के कैसा, फ्लेम ऐसा वैसा होता रहता है वैसा। और यानी कभी इधर कभी उधर, कभी यानी उसका गोल बदलता रहता है बार बार। वो हम्म फिकलनेस, वेवरिंग समझा। एंड लैक ऑफ फर्मनेस। हम्म तीनों बातें एक ही है, लेकिन ये हम्म खास कैरेक्टरिस्टिक है राजसिक एक्टिविटी की। हम्म यदि रजस ही एक्टिविटी होता तो विनोबा जी जैसे व्यक्ति राजसिक एक्टिविटी यूज नहीं करते। बरोबर। राजसिक कब होती है? एक्टिविटी एक्टिविटी का मतलब रजस नहीं है। हम्म। हम्म कोई भी एक्टिविटी तामसिक भी हो सकती है, राजसिक भी हो सकती है, सात्विक भी हो सकती है। हम्म तो कौन सी एक्टिविटी राजसिक है? वो जिसके अंदर फिकलनेस है, वेवरिंग है, लैक ऑफ फर्मनेस है। समझा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, वो जो बच्चे का एग्जाम्पल दिया है कि अभी बीज बोया है, फिर देखते हैं कि उगा कि नहीं। बार बार ऐसे चेक करते रहता है। रिजल्ट की जल्दी। इमीडिएट रिजल्ट। पर्पस फिक्स किया, लेकिन पर्पस के लिए क्या जरूरी है वो सब नहीं कर रहा है, बस रिजल्ट आ जाना चाहिए। मैंने पैसा हम्म बैंक में डाला, इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, आज आ गया कि नहीं। बरोबर। और फिर एक काम किया, अच्छा काम किया, उससे बहुत तारीफ हुई, रिकग्निशन हुआ, तो उसी काम के अंदर आगे बढ़ो। नो योर सेल्फ बेटर फ्रॉम दैट वर्क, वो नहीं। अभी ये तो कर लिया ना, अभी हम्म दूसरा करने का है। दूसरा करने का। बच्चे लोग जैसे एक खिलौना भाग के भाग गया, अभी दूसरा चाहिए, वो तो हम्म फिर ये राजसिक है। और आजकल के माँ बाप लाके देते हैं, बार बार नए नए हम्म देखे, उनका रजस बढ़ा रहे हैं। एक जगह पे टिक कर कुछ गहराई से काम करे, और एक ही काम को इतना अच्छा करें कि अपने आप के अंदर सुधार हो, बजाय इसके कि दूसरों की तारीफ पाने के लिए, ज्यादा लोगों की तारीफ पाने के लिए ज्यादा जगह जाए। और इसमें भी देख, जो सेकंड लास्ट लाइन है, हिज माइंड इज फिक्स्ड ऑन दैट ओनली। माइंड इज फिक्स्ड ऑन व्हाट? कि और कैसे करें, और कैसे करेंगे, और कैसे करें, और फेम कैसे पाए, और पैसा कैसे पाए, और ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे। हम्म ये राजसिक है तो फिक्स्ड। माइंड इज फिक्स्ड, तो तुम बोलोगे सात्विक हो गया, लेकिन नहीं, बट इस हम्म इज फिकलनेस, वेवरी एंड ऑल दैट। ये फर्क समझना पड़ेगा कि मेरे को नहीं हम्म नहीं ये करना अच्छा लगता है, तो आदमी क्या बोल रहा है कि मेरे को राजसिक ही रहना अच्छा लगता है। है कि नहीं? कोई लोग तारीफ करते हैं ना अपने।
जैसे सुमति बोलेगी अभी ये तो सीख लिया, अब मेरे को और दूसरा भी सीखने का है। हम्म, एक को सीख के पूरा उसके डेप्थ में जाके उसको लगाओ और उससे जुड़ो और अपने आप को उससे सुधारो, खुद वो बन जाओ, तब तो वो सात्विक होगा, तब वो फिक्सिटी ऑफ सत्व काइंड है। नहीं तो फिक्सिटी ऐसे है कि ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी। हम्म, अभी फ्री हो गई सुमति? हाँ मैम, फ्री हो गई, क्या लेकिन काम करेगी? मेनोपॉज का चल रहा है। क्या चल रहा है? एक्सेस ब्लीडिंग, डॉक्टर के पास जाके आई। कहाँ जाके आई? गायनेक के पास जाके आई मैम। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही है मेरे को। गायनेक गायनेक के पास जाके, गायनेक के पास। अच्छा, तबीयत ठीक है? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है एक्चुअली, बहुत गड़बड़ चल रही है। शिवा को भी वहाँ ऑफिस में आईटी वाले आके परेशान किया, तो एक हफ्ता वो ऑफिस में ही था, रात को भी नहीं आया था। सुबह 1 घंटा, 2 दिन तो आए नहीं, 3-4 दिन के बाद थोड़ा देर आके सुबह नहा के जाते थे। तो नींद सब बहुत खराब हो गया था। फिर अभी पीरियड्स चालू है तो बंद नहीं हो रहे हैं, फिर पेट दुख रहा है, सब चल रहा है। तेरा एक्यूप्रेशर कुछ काम नहीं आ रहा? हाँ, अभी वही काम कर रहा है, कल किया तो फिर उससे रिलीफ मिला। पहला तुरंत डॉक्टर के पास ही जाने का करके लेके गए। फिर देखा जाएगा तो ठीक वो है। दवा भी गूगल किया, लेकिन मुझे उससे अभी वो दवा नहीं लगी। मैं सीड रखा तो फिर उससे मेरे को बहुत फर्क मिला, एंड दैट ओनली आई एम गोइंग टू कंटिन्यू। ठीक है। उससे फर्क हो। नहीं, डायग्नोसिस के लिए एक बार जाना ठीक है डॉक्टर के पास। हाँ, वही जस्ट टू रूल आउट क्या है, कैसा स्टेटस है, क्यों है करके। फिर ब्लड टेस्ट निकाला तो उसमें भी वैसा एनीमिया की तरह ही बताया। चलेगा उतना, ठीक है, समझ में आ गया अभी क्या है, बट क्या करना है वो भी समझ में आ गया। इसलिए फिर अभी मैं खुद कर लेती हूँ। उपाय करते रहने का। हाँ मैम। चलो, गुड। आगे चले। Under the influence of Rajas, man enters इन into all sorts of activity. He forgets his Swadharma. In fact, performance of Swadharma implies giving up all the other activities. Karma Yoga is enjoined by the Gita, is the cure for Rajas. Everything in Rajas is unsteady and fickle. If the water falling on the mountain top runs down in different directions, all of it disappears eventually. But if it flows down in a single stream, it becomes a river, gathers strength, and benefits all. Similarly, if a man concentrates all his energy and applies into a single task in an orderly manner instead of frit- frittering it away in a variety of activities, it will prove fruitful. That is why pursuit of Swadharma is important. मैम, फिल्टरिंग मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग। बिखरना, जस्ट स्कैटर। तो One should there स्वधर्म for करो। जब स्वधर्म नहीं करते हो तब ऐसा सब राजसिक काम होता है। होता है, सही है। उसका उपाय क्या है? कर्मयोग, एज कंजॉइंड इन गीता। हम्म, इट इज द क्योर फॉर रजस। यस। रजस का उपाय है
करो और फल की इच्छा मत करो। करो। बीज बोओ और भूल जाओ, खाली उसको पानी देते रहो। पेड़ यस। उगा कि नहीं उगा, उगने लगा कि नहीं लगा, वो मत सोचो। One should therefore always reflect upon one's Swadharma and devote all the energies to it. The mind should never be drawn to anything else. This is the test for Swadharma. Karma Yoga does not mean excessive or stupendous work. Karma Yoga is not about how much you work. Karma Yoga of the Gita is something quite different. The distinctive, the distinctive feature of Karma Yoga is the performance of Swadharma, which is in tune with our nature and which comes to us naturally and inescapably, escapably, without any attention to the fruit and progressive purification of the mind thereby. Otherwise, activity are continually going on. एक मिनट हाँ. In continuously going on in the world. Karma Yoga means doing everything with a particular frame of mind. Showing seeds in the field is not the same thing as throwing them here and there. There is a world of difference between these two actions. We know what we gain by showing seeds and what we lose by throwing them. Karma that the Gita prescribes is like showing the seeds. There is tremendous potency in performing one's Swadharma, which is one's duty. Here, no efforts to grade. There is therefore no scope for running around helter skelter. तो वापस स्वधर्म पे आ जाओ, काम करो कि मेरा स्वधर्म क्या है। एक्चुअली पूरा डिटेल एक दिन मैं कहती हूँ ऐसे लिखना चाहिए या लिस्ट बनानी चाहिए, चेकलिस्ट। आज की तारीख में मेरा स्वधर्म, इस टाइम पे मेरा स्वधर्म, और ऐसा तुम 10 दिन 15 दिन लगातार रोज करो। आज के दिन का करो चलो, तो 15 दिन के अंदर समझ में आ जाएगा कि हम सही में स्वधर्म को कितना समझते हैं। ये हमारे को रोज रोज लगता है अलग अलग ढंग से, और अपने कितने अलग अलग रोल्स हैं, और इन रोल्स के अंदर हम कैसे अलग अलग एटीट्यूड रखते हैं, कैसे अलग अलग ढंग से विचार करते हैं। लेकिन उसमें कुछ एक चीज जो समान भी होती है, वो जो समान है वो हम हैं, और वो जो अलग अलग होती है वो हमारे विचार हैं, ये रजस है, ये विकृति है। तो उन सबको कितना इधर उधर जाता है अपने को मालूम पड़ेगा। तो जनरली सब टू डू लिस्ट बनाने के लिए जैसे बोलते हैं ना, तो वैसे आज मेरे को क्या लगता है कि मेरा स्वधर्म क्या है, क्योंकि हर रोज हमारा मेंटल स्टेट अलग अलग होता है ना। Yes. किसी दिन आराम ही आराम करने का है, बीमार है तो कुछ और ही दूसरा है, रेस्ट कर चुके हैं तंदुरुस्त है तो और ही दूसरा है, कोई पिक्चर विक्चर देख ली है तो उसके हिसाब से कुछ अलग आएगा, कुछ एक अलग बुक पढ़ ली है तो उसके हिसाब से कुछ अलग आएगा, तो एक अलग टाइप का वीडियो देख कुछ और अलग आएगा। यस, वो चलते अलग अलग ही रहता है। हाँ, तो एक बार उसको नोट करके देखो
when you write it down and see 10-15 days का together, 1 month का एक साथ में जब उसको ऑब्जेक्टिवली देख पाएंगे, क्योंकि हम भूल जाते हैं 8 दिन बाद में, हमको याद नहीं रहता है कि लास्ट मंडे को हमारा क्या स्वधर्म था, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था स्वधर्म का, हमको याद नहीं रहता है। तो वो इकट्ठा करके जब हम देखेंगे ना, तो हमारे को समझ में आएगा कि हमारा स्वधर्म के बारे में हमारी बुद्धि ही सही नहीं है, स्थिर नहीं है। स्वधर्म के नाम पे भी राजसिक हो रहे हैं। तो अपने आप के ऊपर बराबर। रिसर्च करने की जरूरत है। और सही। सिंपल डेटा कलेक्शन है, पहले तो लिखो अपना, आज की तारीख में मेरे को क्या लगता है मेरा स्वधर्म क्या है, और 15 दिन तक पीछे पलट के देखने का नहीं कल क्या लिखा था। आज एकदम अच्छा। फ्रेश सोचो, वापस लिखो कि आज क्या लगता है तुम्हारा क्या स्वधर्म है। हो सकता है कुछ चीजें रिपीट होगी, नॉट टू बॉदर अबाउट दैट। भले कल भी लिखा था, लेकिन यदि आज भी ऐसा ही लगता है तो लिखो। 10-15 दिन लगातार करके देखो, what a mirror you will get about yourself, and the concept of Swadharma, your existing concept of Swadharma will become clear, and if there is anything to correct in it, उसको concrete बनाने के अंदर काम आएगा वो। ट्राई करो यदि करना है तो रजस को थोड़ा मात दे सकेंगे, कर्मयोग शुरू हो पाएगा। वेरी ट्रू। क्योंकि जब तक स्वधर्म नहीं कर रहे हो, कर्मयोग हो ही नहीं सकता। चले। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ओनली। How to determine one's स्वधर्म? अच्छा, मेरे को मैसेज आ गया है, कुछ 6-8-5 मिनट के अंदर बंद होने वाला है। अच्छा, वापस लॉग इन करूं? तो क्या करें? हाँ, वापस लॉग इन कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं न्यूज ये स्टफ। अच्छा, अभी अपन लॉग इन एग्जिट करते हैं करके, वापस। हाँ हाँ, अभी एग्जिट करके लॉग इन करते हैं। गुड आइडिया।